Of Balochistan people are very clever, with a clever, big, intelligent eyes. I see some traces of big mind in these eyes, and of course, it's very good. रशिया गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऐलान किया है ना, उसमें अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से आता है वहाँ पे रशिया में, अगर वो स्टूडेंट वहाँ पे 4 साल मतवातर वहाँ पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट फिर रशियन पासपोर्ट हासिल रखने का हक रखता है ना, अहल हो जाएगा ना। 4 साल 4 साल। ये जो रशियन डेलीगेशन आए हुए बहुत ही खुश है, रियली खुश हैं? हाँ, बहुत ही आप लोगों की मेहमान नवाजी से। उन्होंने कहा कि जी एक बार नहीं, हम 10 बार आएंगे। We have not so many Pakistani people, and we have it, but not so many. And we wanted to change this story. We wanted to change this quantity, to make it bigger. And I really think that now it's a very good moment for it. दूसरी अच्छी बात ये है ना, अगर एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जाता है रशिया, तो अगर वहाँ पढ़ते हैं और आपका बजट कम है, तो उसके साथ साथ आपको फ्री टाइम या पर टाइम आपको जो है ना जॉब का मौका भी दे रहे हैं ना, ताकि आप अपनी स्टडी जारी रख सकें ना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दौलत खान साहब जो रशिया में मुकीम हैं, वो ये लेकर आए हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को रशिया लेके जाना है ताकि उनके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हों। और मैंने कहा कि वो ख़ुद नहीं आए बल्कि रशियंस को भी साथ लेकर आए हैं। तो अभी हमारे साथ रशिया की ही एक जो इनके साथ आई हुई हैं खातून मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच, वी वेलकम यू हियर। Kindly introduce yourself. Thank you very much for your invitation. We are very happy to be here. My name is Darya Pfau. I am a director of Russian Education Service. Our company was founded in 2022 in St. Petersburg, cultural capital of Russia. And we have a big partner in Pakistan, here in your country, with the office in Islamabad. This is the company DK Study Abroad. This is project of two sides, Pakistani and Russian. And of course, this is the first time for us, and it's very interesting to be here in your province, in Balochistan, in Quetta. It's my first time here, and I hope that it's not the last time here. How is your experience when you came here in Balochistan before visit here? You know a lot of rumors about Balochistan, about Pakistan. So what is your experience? Oh, you know, now we have the big business trip for more than 3 weeks. And of course, I have a big possibility to make some experience of myself about different cities of Pakistan and about your province too, of course. What I can say, all cities are very different. A lot of people asked me, what do you think about our country, about Pakistan, I mean? And I answered, Pakistan is very different. Every province is different, different nations, Yes. different culture. Of course, every province is different. We have been before Quetta, we have been on the series of exhibition of education, exhibition of the theme of education and science in Islamabad, in Karachi and in Lahore. And now we are here in Balochistan, in Quetta. Our company and all our project of both sides, you understand the sides. Education project. Our big first education project, Yes. because it's the first time when the Russian company participate on some big series of exhibition of It's education. first time in Pakistan. Of course, it's first time. We are like, we are like a pioneers who make something for the first time. First time. But I hope one more. I wanted to say that I hope that it's not the last. Yes. It's just Again a start. and again. Yeah, it's just the last step by step, year by year. I hope that we will do it. We will do something together with your province. And what about Quetta? My business has a support of honorary consul of Pakistan in my city, in St. Petersburg. The old name of my city, this is Leningrad.
And we have a support of honorary consul of St. Petersburg and Leningrad region, the region around my city, around St. Petersburg. Yes. The name of the honorary consul is Mr. Rind Abdul Rauf. Yes. Mr. Rind Abdul Rauf was born here Yes, in in Balochistan, and of course he very asked us to be here. Of course we know that situation maybe it's not so calm here. So- we can read the news. I'm journalist, a professional journalist like you. I have a big experience, more than 20 years. So you know a little bit more. Yes, I know something parts of life maybe. Yes, I have some my life and my working experience, and of course I can to see around. But here now for us it's very interesting to be here and very agreeable. The Pakistani people have very nice faces. Say. Yeah, the face of Balochistan people are very clever, with a clever, big, intelligent eyes. I see some traces of big mind in these eyes, and of course it's very good. And you know, Russia, this is a country who stand on the center. It's not Europe and not Asia. Russia, it's some country who stand In both. both continents. sides, yes, in Yes. both continents. And we know, of course, that Pakistan it's Asian country. And you know, when I stand here in Pakistan more than 3 weeks, it's approximately 1 month. Yes, I always think every day. I think that we have a more general interaction. It's your Some first time lines. to visit Pakistan? Yes, it's my first time. But every day I think about some general lines of my people and your people, of Russian people and Pakistani people. Really, it's true. And in the faces, maybe it's the same story. We have the same faces. Really, when some guys sitting near to me on the exhibition, for example, and here on the Pegasus Club, I say to different people, you know, you have a Russian face. Oh. It's very interesting. Yes, really. Say, tell us about the students, because our students go abroad mostly in Europe, in USA, but we are looking that there are too much difficulties for them. Is Russia student friendly? Is their packages student friendly? Tell us about our viewers. Okay, with pleasure. Of course, we know that a lot of different universities of Europe, of USA, of Australia, for example, of China, have a very big activity in Pakistan. We want to change this story, we want to change this situation and start to invite your students to us. Because really, I'm sure that now it's a very good moment for start to build some new stage of friendship between our two countries, yes? Because you know our government makes some steps in this direction, and my work, the work of my team, you know, it's the same work. It's the same work. The work of building of friendship between us, Yes. of building of new relationships between us. But maybe it's the work on my level of education, level of science, level of students. What about atmosphere? St. Petersburg, you know, this second capital of Russia. This is cultural capital of Russia, and for us it's normal. It's normal to see around us the people of different nations. Yes. Our city, this is international, multicultural city. We have a lot of different universities, and of course for us it's normal that we can see on the street, for example, the people from South Africa, because our country has a good friendship with this country, from Kenya, from Uganda, with black skin. We see a lot of Chinese, of course, you know, because Chinese are anywhere. Yes. In all the world. We have a lot of Indian students, because India is a very big country, you know it, of course, and we have not so many Pakistani people, and we have it, but not so many, and we wanted to change this story. We wanted to change this quantity, to make it bigger, and I really think that now it's a very good moment for this. Is And government of Pakistan supporting this initiative?
No, our work, it's our private work. Yes. We have a commerce organization. Of course, we have some relationships with your government because before yesterday we have a meeting, big meeting, very good meeting with governor of Balochistan. Yes. It was very interesting, and we have some new stories, some new notes about our future work. Work of together, because of course the situation of Balochistan needs to make some general steps. Yes. The steps of both sides, the side of government and the side of some commercial companies like us. But Yes. really, I think that we are unique. Second, what will you say to students if they will come to Russia? How their life will be changed? Oh, good question. Because of course, I think that if somebody will decide to go to Russia, life really will very change. Because can you imagine my city, my St. Petersburg, my lovely city? I am a fan of my city. I'm really sure that it's most beautiful city in the world. And can you imagine when you have some morning, you going to the street and you sit around you can see around yourself very beautiful buildings, I don't know, very beautiful faces, very friendly atmosphere. It's very good. I told to students about, for example, the phenomenon of white nights. You know what is it? White nights? It's famous natural phenomenon, very interesting. When approximately between the end of May to from the end of May to the end of June, the sun is not down. We have the dark night, like here, for example, Yes. or like in my country on the winter. It's not, of course, it's not the real day, like in the middle of the day when the sun is shining very brightly, but it's just like a start of evening. It's very interesting, gray color, a lot of people walking on the streets, a lot of tourists, because my city it's a center of tourism, of course. Yes. And you need to know that not only the people from all the world, but the people from all my country dreaming about visit St. Petersburg. And Yes. my success is to be here. And of course, I invited all the people of Balochistan to visit my city, like students or maybe like tourists. It's different story, but it's possible. Why not? We are very open now. It means there is no difference between culture, religion, ethnicity. Yes. All are there. Yes, about religion, I can say also that yes, we have a lot of Muslim people. For example, only in St. Petersburg we have three mosques. And in our country we have the real regions with main Islam religion. Yes. With a lot of mosques. For example, Dagestan, we have Kazan, Tatarstan. Kazan is capital of Tatarstan, the third city. Now it's a third city after St. Petersburg, Moscow, St. Petersburg, and Kazan. Very beautiful, very interesting. With Islam. Like main religion. It's interesting. We have halal restaurant. I say about it because a lot of different people ask me. Yes. What do you have some halal? Yes, we have. In my city we have Pakistani restaurant, for example. Of course, not so many. It's not on every corner, but we have it. Indian, China, because I know that your people like this Yes, food. Yes. We So have how is all. quality of education there? Quality? Regarding Europe? Of my opinion, the level of education in my country is very high, because in Russia we have the school of old Soviet school, Yes. school of old time, with very clever professors, with a lot of family generations of professors, step by step, daughter, mother, else, different stories, different stories, but one
main affair of main work of the life of real families, different families, professors, to be very intelligent people, to make your knowledge to other people, yes. And the level of our education is very high, and the cost is less. It is less. If we will start to compare it with Europe, for example, it's really more or less, maybe 5 or 6 or 7 times less than in Europe. And of course, I think that for Pakistani people, it's a good story, good way to change the life, to try to live in another country. Right. In last, what message you will give to the people of Pakistan and for Balochistan? Oh, give me some time, 5 seconds. I wish you to have opened your mind, to have opened your eyes, and to have opened your soul, because our world is beautiful. Our world is very beautiful. It's a perfect world. And step by step, every day, we need to think about developing our soul and our mind, Yes. and to be clever and intelligent, to be good people with good and very clear mind. हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया और बाकायदा रशियन लोगों को यहाँ पर लाए, और यकीनन आपको ऐसा देखने में नहीं आया होगा। तो सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और दूसरा बताएं इस प्रोग्राम से मुतालिक और स्पेशली यहाँ कंडक्ट करवाने से मुतालिक। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल पाकिस्तान इमेज का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेमिनार आए, सेमिनार में और हमारा सेमिनार का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं तकरीबन 12 साल से रशिया में वहाँ पे सेटल हूँ, यानी मैं वहाँ से बिज़नेस कर रहा हूँ जो क्वेटा है, आल पाकिस्तान। पहले तो मैं बिज़नेस लोगों को अब बिज़नेस की अपॉर्चुनिटियाँ दे रहा था ना, जी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये हमारा जो बलूचिस्तान सूबा है ये बहुत ज़्यादा पसमानदा सूबा है ना, क्योंकि हमारा उठना बैठना सारा उन यूनिवर्सिटियों के साथ है ना, तो रशिया में। जी। तो हमने सोचा कि मैं अपने सूबे के लिए, बलूचिस्तान के आवाम के लिए कुछ स्टूडेंट के हवाले से कुछ कर न लूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे या टीवी पे या कोई सोशल मीडिया देख, यहाँ के हालात में देख रहा था, यहाँ पे अगर कोई बंदा अच्छी एजुकेशन हासिल करता भी है ना, लेकिन उसको बाद में वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके नहीं मिलते ना जो उनको मिलने चाहिए ना। बेशक। तो मैंने ये सोचा कि क्यों मैं यहाँ के जो स्टूडेंट है ना, FSC के बाद BSc के बाद, उनके लिए वहाँ पे पढ़ने का इंतज़ाम क्यों ना करूँ। तो ये सेमिनार का मकसद भी यही है कि मैं यहाँ सूबे के आवाम में थोड़ा अवेयरनेस पैदा करूँ, ताकि ये लोग वहाँ जाके पढ़े और वहाँ आला तालीम हासिल करें। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, शायद ये बात यहाँ बहुत लोगों को पता ना हो ना, रशिया गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऐलान किया है ना, उसमें अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से आता है वहाँ पे रशिया में, अगर वो स्टूडेंट वहाँ पे 4 साल मतवातर वहाँ पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट फिर रशियन पासपोर्ट हासिल रखने का हक रखता है ना, अहल हो जाएगा ना। 4 साल यानी 5वें साल में वो पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये है ना, अगर एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जाता है रशिया, तो अगर वहाँ पढ़ते हैं और आपका बजट कम है, तो उसके साथ साथ आपको फ्री टाइम या पर टाइम आपको जो है ना जॉब का मौका भी दे रहे हैं ना, ताकि आप अपनी स्टडी जारी रख सकें ना। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि रशिया जो लोग जाना चाह रहे हैं, वह पढ़ना चाह रहे हैं ना, एक तो 4 साल के बाद जब आपको जो है ना रशिया पासपोर्ट मिलेगा, इसका मतलब ये होगा ना, रशियन पासपोर्ट में इस वक्त 132 ममालिक फ्री है, यानी फ्री आप जा सकते हैं रशियन पासपोर्ट में ना। तो आप दूसरे ममालिक से इसका कंपैरिजन कर ले, अमेरिका मतलब यूरोप लोग जा रहे हैं, एक तो उनकी तालीम बहुत ज़्यादा आपको पता है महंगी है ना। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि सर, लोग पहली बलूचिस्तान वालों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। दूसरा, वो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो दूसरे ममालिक में क्यों ना जाए, यूके क्यों ना जाए, USA क्यों ना जाए, रशिया आए, उस पर आप उसे कैसे कन्विंस कर पाएंगे? देखो, क्या दलीलें हैं आपके पास? मेरे पास दलील तो यही है कि आकर मैं लोगों के साथ उनके दरमियान में बैठूं, उनको अपने जो मेरी सोच है, जो मेरी विजन है, उसको मैं आगाह कर सकूं।
बाकी तो स्टूडेंट्स या लोग हैं, उनकी मर्जी है उन्हें क्या करना या नहीं करना। जी, जी। मैं तो आपके सामने ये बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में आप भी काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं, मैं भी आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ और आपका फैन भी हूँ एक तरह से ना। रेशा में बैठ के आपके चैनल में देखता रहता हूँ, अल्लाह इसको और कामयाब करे ना। जो आप अपॉर्चुनिटीज के हवाले से सर बताएं रशिया में कि अपॉर्चुनिटीज कोई वहाँ जाता है जो स्टूडेंट सपोज किया, आजकल हम देख रहे हैं यूरोप में बड़े इश्यूज आ रहे हैं, कनाडा में इश्यूज आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है। मैं बताता हूँ, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो ये है ना, मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से यूएसए जाता है ना, जी जी, सबसे पहले बात तो ये है ना, यूएसए में जो भी स्टूडेंट जाएगा ना, कम से कम 1,20,00,000 रुपए उसका अकाउंट में होने चाहिए। जी जी, तब स्टूडेंट जा सकता है। जी जी, वो भी कंफर्म नहीं है वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ आइए ना। लेकिन रशिया में ये नहीं है। लेकिन यूएसए और यूरोप में ये चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ आपको जो है ना पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है, ठीक है जी जी, अलाउड नहीं। रशिया में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, स्टूडेंट वहाँ पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं ना। तो यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर स्टूडेंट वहाँ पे यूरोप लाइक कनाडा अमेरिका जा रहे हैं ना, तो उनको फिर जो है ना पासपोर्ट लेने में बहुत मुश्किल है। अभी उन्होंने बिल्कुल ये सिस्टम ख़त्म ही कर दिया कि भाई स्टूडेंट आएगा पढ़ेगा तो वापस अपने मुल्क जाएगा, ठीक है ना। कोई वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ना वो वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी कैटेगरी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन रशिया ने ये ऑप्शन दिया है ना कि अगर मेरी कंट्री में कोई स्टूडेंट आ रहा है ना, अगर वो 4 साल मुतवत्तर यहाँ पढ़ेगा तो वो इस चीज़ का हकदार होगा कि वो रशियन पासपोर्ट हासिल कर सके ना। सर आखिर में ये पैगाम दें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो उनके हवाले से क्या पैगाम है कि वो रशिया क्यों आएँ, और स्पेशली जो हमारा खिता है बलूचिस्तान है, बदकिस्मती से यहाँ पे बहुत ही कम मौक़े हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे कि क्या करें लोग? सबसे पहले मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मैं तकरीबन इस वक्त 72 कंट्री घूम चुका हूँ। 72 आपके बलूचिस्तान में ऐसा कोई बंदा भी नहीं होगा जो 72 कंट्री उन्होंने विजिट किया हो ना। यानी 72 कंट्रीज को देखकर मैंने ये फैसला किया कि रशिया क्यों अच्छा है मेरे लिए। इसीलिए मैंने सब कंट्रीज में रशिया को इसलिए चुना क्योंकि एक वहाँ पे अमन है, कोई ऐसा वैसा इसी वैसी चीज नहीं कि वहाँ बंद रहे ना। जंग चल रही है यूक्रेन के साथ, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, वो रशिया को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना। ये तो वैसे लोगों की बातें है ना, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात ये है ना, स्टूडेंट्स के अलावा मैं थोड़ा बिजनेस के ऊपर बात भी कर सकूँ अगर आप इजाज़त दे रहे हैं। स्टूडेंट का तो मैंने आपको सारा डिटेल तफसील बता दिया ना। बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे रशिया पे इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि लोगों को पता नहीं है ना। बस लोगों के जहन में ये गुस्सा हुआ है कि यूरोप जाना है, डंकी लगाना है, ये करना है, वो करना है, यूरो करना है, क्या करना है ना। लोग ये समझ रहे हैं वहाँ पैसे जो ना दरख्तों के साथ लटके होते हैं। यूरोप से तो मैं हर दूसरे महीने आता जाता हूँ। आप यकीन करें लोग इतने जलील इतने ख्वार है ना, बिल्कुल कितने सैकड़ों की तादाद में तो पिछले साल 30-40 लाख रुपए लगा के डंकियाँ लगा के, कभी ईरान के बॉर्डर से, कभी तुर्की के बॉर्डर से, कभी लीबिया के बॉर्डर से, कभी किसके बॉर्डर से, ये लोग जो ये पैसे आप रशिया में लगाओ ना। सर कितना एक्सपेंस में कितना फर्क है बाकी ममालिक में, मतलब यूरोप जाने के लिए और रशिया? आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब अगर आप परसेंटेज में थोड़ा सा नाजरीन को बता दें कि इतनी, अगर आप वहाँ जाने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होगा तो रशिया में जाने के लिए आपको इतने चाहिए होंगे। देखो मेरी बात सही है तो बहुत मुख्तसर सी बात है ना कि मैं आपको बता दूं, 1 रूबल जो है ना पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर है। जी जी। और 1 यूरो पाकिस्तान का जो है ना 330 रुपए के बराबर है, ठीक है। ये क्लोजली है। लोग क्या करते हैं ना, लोग वो करेंसी को देखते हैं कि करेंसी अब हम ऊपर जाएंगे ना तो हम कमाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लाइक जापान की मिसाल लो, जापान कितना आगे है लेकिन हमारी करेंसी और उस करेंसी आपस में बराबर है। कभी कभी हमारी करेंसी उससे ऊपर चली जाती है ना, लेकिन वहाँ पे जो सैलरियाँ हैं, जो लोग मजदूरियाँ करते 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं ना। यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में आप दिन रात एक भी कर लो, आप जो है ना 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकते। बाकी आपने जितने कमाए वो आपके सारे टैक्सेस में घट जाते। रशिया इसलिए बेहतर है ना, एक तो यहाँ हमारे और रशिया के ताल्लुक रोज़ बरोज़ बेहतर होते जा रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है ना, अगर एक लेबर वहाँ पे काम करता है उसका जो है ना 500 से लेकर 700-800 डॉलर तक उसकी सैलरी है। और दूसरी बात आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक और बात अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा
मैंने अपनी कंपनी के ऊपर वहाँ 2500 वर्क वीज़े अप्लाई किया ना, जी जी, ये अपने बलूचिस्तान के अवाम के लिए ना। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह वो सारे पेंडिंग में है, ठीक है ना। जी जी। अभी उसका आज अप्रूवल आता है, कल आता है, महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है ना। अगर उसका आ गया ना जी जी। तो वो अप्रूवल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रशिया से ना, जी जी। 2500 वीज़े वो मेरा अपने बलूचिस्तान के साथ अवाम के साथ ये मैंने वादा किया हुआ है। मैं सिर्फ इस सूबे के लोगों को करूँगा और फिर मैं इंशाल्लाह आप सबको बुलाऊँगा, ऐसा इवेंट, ऐसे सेमिनार मुनक़िद करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग इसका हकदार होंगे, जो गरीब तबका होगा, उसमें मैं सबको बांट दूँगा इसमें। और दूसरी बात ये है ना, एक और चीज़ आपके लिए मैं ज़िक्र करूँ, कल नहीं परसों हमारे गवर्नर साहब जाफर साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें बुलाया था ना। जी जी। उनके साथ मैंने ये बात शेयर की है, हम सब ने मिल के, और हमारी जो रशिया में सफ़ीर है डॉक्टर रऊफ साहब, उसकी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिशों की वजह से ये सारी टीम यहाँ आई है। उसमें मेरी भी मेहनत है, उनकी भी मेहनत है ना, उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इनकी मौजूदगी में हम गवर्नर साहब से मिले। गवर्नर साहब से हमने कहा कि अगर आप स्कॉलरशिप पे एक स्टूडेंट को अमेरिका भेज रहे हैं, जी जी, वो आप लोग करोड़ों रुपए एक स्टूडेंट के ऊपर खर्चा करते हैं ना, आप ऐसा क्यों नहीं करते? वो एक स्टूडेंट की बजाय 30 स्टूडेंट रशिया क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसी एक्सपेंस उसी में 20-30 स्टूडेंट उसमें भेज दे। अब एक अच्छा या 30 अच्छे हैं, ज़ाहिर है 30 अच्छे। तो गवर्नर साहब ने हमारी बातों को बहुत सराहा कि यहाँ मैं बहुत खुशी हुई आप लोग इस तरह प्रोग्राम लेकर आए ना। तो गवर्नर साहब ने हमारे सामने हमारी जो बातें सुनी, वहाँ पे उनका जो PS था, उसमें वहाँ पे एक सेनेटर साहिबा थी ना, वो सारा, फिर उन्होंने हमारी मुलाकात जो है ना CM के साथ, जफ़र यहाँ के जो वज़ीर आला है ना, जी जी, सरफराज बुगटी के साहब, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो यहाँ नहीं थे, वो इस्लामाबाद में थे। फिर उन्होंने हमें बात की जब आप इस्लामाबाद आएंगे फिर हम आपके साथ वो इस मौजू पे डिस्कस करेंगे। उसको ये बावर कराने की कोशिश की कि भाई यहाँ बलूचिस्तान में जो है ना बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है ना, कम से कम ये गरीब तबका जो है ना, जो गरीब लोग है ना, ये जो स्कॉलरशिप, ये लोग जो इनका हकदार है ना, इनको वहाँ भेजे। यहाँ फंड आ जाते हैं सुबह के सतह पर स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन पैसा का कोई पता नहीं लगता, कोई बंदा नहीं चला जाता, पैसे सारे गायब हो जाते हैं। तो गवर्नर साहब ने तो बहुत बड़ी यकीन दहानी करवाई है ना, आप भला करे सामने। तो एक बात ये करते हैं ना, बात आपकी वजह है, सियासी लोग सियासी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। जी जी। तो होप सो ये यही है कि गवर्नर साहब ने भी कहा, अभी सोशल मीडिया का भी वो होगा लोग, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी। वजीर आला साहब भी एजुकेशन पे बड़ा काम कर रहे हैं ना। उम्मीद यही है कि आप लोगों की मीटिंग भी होगी और तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप रशिया लेके जा। वज़ीर आला के साथ हमने ये भी डिस्कस करना है कि आपने खुद जो ना आकर चैनल में बैठ कर ये कहा है कि मैं 30 लाख वर्कर बलूचिस्तान से यहाँ भेजूंगा बाहर। 30,000 जी जी। तो अब जब मैं यहाँ लोगों से सुन रहा हूँ किसी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है भाई, ये 30,000 लेबर जो है मुझे दे दो, मैं वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। जबरदस्त। यहाँ पे मैं करता हूँ। अगर 30,000 लेबर पे वहाँ अरबों का बजट आ रहा है, यहाँ करोड़ों का आएगा। ये सुबह को भी फायदा होगा, आवाम का भी फायदा होगा, कम बजट में आप लेबर को उधर बेच सकेंगे। सही समझ गए। वो चीजें मैंने उनके सामने रखी है ना, तो बस उन्होंने तो यकीन अपनी तरफ से बहुत दिलाई है। अभी सियासी लोग क्या होता है क्या नहीं होता वो तो अल्लाह ही जानता है ना। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस। अभी जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं, इन्हीं की मरहून मिन्नत ये एक्सपो मुनक्किद हो सका और आप लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल लेवल का ये हुआ और इंटरनेशनल लोगों को लाया गया। ये मुअज़्ज़िज़ शख्सियत डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद साहब हैं, तो इनसे पूछते हैं इन्हीं की ज़बानी, सर अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ कराएं कि कहाँ बलूचिस्तान में आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे। सबसे पहले तो लोग बलूचिस्तान जब जाते हैं फिर बलूचिस्तान देखने भी नहीं आते, कम से कम आप रशिया में रह के आपको थोड़ा बहुत एहसास हुआ और यहाँ पे न सिर्फ खुद आए बल्कि उनको भी लेकर आ गए और अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ गए। तो काइंडली थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल रऊफ रिंद, मैं पाकिस्तान का एजाज़ी कौंसल जनरल हूँ पिछले 17 साल से रशिया में जी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड लेनिनग्राड रीजन में। मैं यहाँ से 83 में गया हूँ पढ़ने के लिए। जी जी। प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, मैं पीडियाट्रिक सर्जन। माशाअल्लाह। तो तालीम वहाँ से हासिल की और उधर ही रह गया। जी जी। तो अभी जितनी भी हो सकती है अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं खिदमत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो आना हुआ वो इसी वजह से कि जी एक इवेंट हो रही थी एक्सपो, एजुकेशन एक्सपो। जी जी।
वो कराची से शुरू हुआ हमारा 3 दिन का। जी जी। इसके बाद 2 दिन इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद के बाद हम गए लाहौर 3 दिन के लिए, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, ज़बरदस्त। और क्योंकि जो रशिया की एजुकेशन है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और इस वक्त भी मेरे साथ बैठे हुए ये जो लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और अच्छे पोस्टों पे यहाँ पे वो हैं, उन्होंने तकरीबन 30 साल पहले वहाँ पे एजुकेशन हासिल की है और यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे मैं इस इलाके का हूँ, मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान में उस्ताद मोहम्मद से मेरा वो है ताल्लुक़ है, तो मैं ये चाह रहा था कि जी अपने इलाके के लिए कुछ करूं। ज़बरदस्त। तो इसलिए मैंने इनसे ख़ुसूसी रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरे सूबे में चलें और आपको अच्छी मेहमान नवाजी और मिलेगी, और तो इसी वजह से ये जो रशियन डेलीगेशन आए हुए बहुत ही खुश है, रियली खुश हैं? हाँ, बहुत ही आप लोगों की मेहमान नवाजी से। उन्होंने कहा कि जी एक बार नहीं, हम 10 बार आएंगे, जितनी भी मुश्किलात हों लेकिन हम आएंगे यहाँ। ज़बरदस्त, ये आपकी मरहून मिन्नत ही हुआ है और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। सर, जिस तरह आपने कहा कि 30-40 साल कबल वहाँ हुए और आपको 17 साल हो गए, आप बिल्कुल रशियनी हो गए हैं। पहले हमारे लोग बहुत बड़ी तादाद में, जब आपका एज ग्रुप था, वो गए जी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तो डाउनफॉल हुआ बदकिस्मती से, उसके बाद अब हमारे लोग बहुत ही कम तादाद में। पहले ये होता था, जिस तरह आप कह रहे हैं, हमारी एक बड़ी जनरेशन आज भी जो ऑफिस संभाले हुए हैं वो लोग थे जो रशिया से पढ़ कर आए। उसके बाद बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ना होने की बराबर है बलूचिस्तान से वहाँ के लोग। आखिर क्या रीज़न है? पहले वाले लोग ज़्यादा एक्टिव थे या बाद में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन टूट गई? रीज़न क्या है? जी, जनरली मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो इंफॉर्मेशन की कमी है जी जी, और दूसरी हमारे जो ताल्लुकात के भी मसाइल थे थोड़ी बहुत। तो अल्लाह के फजल से इस वक्त रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जी जी, क्योंकि पिछले, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि पिछले 1.5 महीने में यहाँ पे सबसे पहले विज़िट हुआ उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर का। जी जी, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पे रशिया के, इसके बाद सेनेट की चेयरमैन यहाँ पे आई। तो ये ताल्लुकात बन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मिले पुतिन के साथ उनकी कज़ाकिस्तान में, उन पे उन्होंने बातचीत की काफ़ी, एजुकेशन, कल्चर, इसके बारे में। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि इसको अभी बहुत अच्छी टाइम है, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। जी जी, इसलिए हमारी गवर्नर बलूचिस्तान से भी बात हुई इस बारे में, और रशियन एम्बेसडर से मुलाकात हुई, इस बारे में हमने काफ़ी बातचीत की। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस चीज़ के। सही सर। तो फिर वही है कि सर फ़र्क क्या है कि दूसरे ममालिक यूरोप में जाना और रशिया में जाना, इनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़, इस हवाले से क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को गाइड करें। देखें, इस वक्त रशिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दूसरी बात यह है कि जी आप उनके साथ कंपेयर करें, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, या अमेरिका या कनाडा के साथ, उनकी प्राइसेस जो एजुकेशन के हैं बहुत महंगी हैं। अगर उनकी जो दरमियान की वो है वो 18 से 20 हज़ार डॉलर पर ईयर की वो है। रशिया में यही एजुकेशन आप 3,000 डॉलर में वो कर सकते हैं, आप पूरे साल की। तो मेरे ख्याल में इसमें हर बंदा नहीं, तकरीबन बहुत से लोग जा सकते हैं। और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं, एजुकेशन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लाइफ बेहतर है, बहुत बेहतर है। और सबसे आखिर में मैं बात ये इसमें करना चाहता हूँ, इस वक्त आप जब जाते हैं तो उनके लिए रेजिडेंशियल भी उनको मिल जाती है, जी जी, टेम्परेरी रहने के लिए, जी जी। तो इसके बाद नई कानून ये है कि लोग काम भी कर सकते हैं वहाँ पे सेकंड हाउस में। अगर कोई अच्छी हो तो उनको सिटीजनशिप के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यही मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिस पे बात की जा सकती है। सर आखिरी सवाल कि बदकिस्मती से हमारा जो पासपोर्ट है कोई बदतरीन पासपोर्ट में 3-4 नंबर पे आ चुका है, तो रशिया में पाकिस्तान की पासपोर्ट की या पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त है? जी बिल्कुल, इसमें वो नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त है, लेकिन ये है कि जो लोग क्या कहते हैं लीगली जाना चाहते हैं, लीगली पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। इस वक्त आ रहे हैं लोग,
स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। इसलिए हम आए हुए हैं कि जी आएँ और उनको कोई मुश्किलात नहीं होंगे, वो पढ़ेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे और आकर कौम और मुल्क की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और बलूचिस्तान के लिए जो आपका दर्द है उसको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमने कोशिश की कि जो भी मुताल्लिका लोग हैं उनसे आपकी बात कराएं, तो आपने देखा कि बलूचिस्तान से जो लोग गए हुए हैं बाहर, इंसान जहाँ भी जाता है तो कोशिश उसकी यही होती है कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। तो जो ये लोग हैं, आपने देखा कि ये एजाज़ी सफ़ीर भी हैं, वहाँ सेटल हैं, वहाँ शादियाँ की हैं, लेकिन फिर भी अपने इलाके की और अपने लोगों की इनको याद है और ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं। और जिस तरह आपने उनके जज्बात सुने कि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जा सकें वहाँ कारोबार के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, ताकि हमारी बदकिस्मती से एक तो पाकिस्तान बहुत पीछे है और इसके बाद फिर जब बात बलूचिस्तान की आती है तो हम तो बहुत ही पीछे हैं। और यकीनन एक घर से अगर एक शख्स बाहर जाता है और फिर स्पेशली ऐसे ममालिक में जाता है तो वो अपने ख़ानदान और अपने मोहल्ले और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी चेंज करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जो अपॉर्चुनिटी आए और हमारे बस में हो तो हम उसको ज़रूर अवेल करें, ताकि हमने जैसी लाइफ गुजारी है हमारे आने वाली नस्ल वो न करे। और हम जहाँ भी जाएं, हम अगर गए, हमें मौका मिला है तो हमारी कोशिश हो कि कम से कम 5 से 10 लोग हम भी लेकर जाने में कामयाब हों। तो ऐसे मज़ीद भी कोई अच्छे इनिशिएटिव होंगे तो हम आपकी खिदमत में ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।